Good morning, everyone. This is Himani Bali. So today in our class, we'll discuss the next chapter, that is algorithms and flowcharts. So in this chapter, we'll cover these contents today. The first one is introduction, then algorithm, characteristics of good algorithm, uses of algorithm, and developing a algorithm. So, any task that can be carried out systematically using a precise step-by-step method can be performed by a computer, and we need algorithm and flowchart for defining those steps for doing a particular task. So, the first step that arises is what is an algorithm. Algorithm is a finite step set of instructions written in sequential order to solve any logical or mathematical problem. It is written in simple language and precise manner so that everyone can understand the steps. Algorithm is not written in any programming language. So what is an algorithm? Algorithm contains a set of instructions you already know, because कि जब भी आपको कोई प्रोग्राम, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली काम नहीं करता, उसे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग चाहिए होती है, काम करता है उस प्रोग्रामिंग पे। सो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ instructions. So program लिखने से पहले we need certain steps, that is algorithm and flowchart. Algorithm is the basic set of instructions written in a sequential orders to solve any mathematical or logical problem. So it is written in a very simple language so that everyone can understand these steps. It is not a programming language, it is a general steps that are required to solve any of the problem. So I think now you understand what is an algorithm. Algorithm is the basic steps that are required to solve a particular problem. Got it? So I'm giving you a simple example of algorithm. Look at this algorithm. Algorithm to write and send a letter. I'm writing an algorithm for writing a letter and send it to someone. So the first step, that is you have to take a pen. Then the second step is take a paper. आपको चाहिए क्या होता है उसके लिए, आपने लेटर लिखना है तो आपको एक पेन चाहिए, एक पेपर चाहिए। उसके बाद आप लेटर लिखोगी कि आपने वो लिखना क्या है, देन उसके बाद आप उसको फोल्ड करते हो, एनवलप में डालते हो। तो यही सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको एक लेटर लिखने के लिए चाहिए हैं। सो दिस इज द एल्गोरिदम टू राइट अ लेटर। देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। किस तरह से लिखा है? देन for step 1 take a pen, step 2 take a paper, step 3 write the letter, step 4 fold the paper and put it in envelope, step 5 close the envelope, step 6 write the address, step 7 apply glue and paste the stamp, step 8 go to the post box and step 9 drop the envelope. आपने लिख लिया? आप लिखते हो, लेटर लिखते हो, उसको एनवलप में डालते हो, बाहर एड्रेस लिखते हो, फिर स्टैंप लगाते हो उसके ऊपर, और उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस में जाके उसमें पोस्ट बॉक्स में डाल देते हो अपने एनवलप को। सो दिस इज द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू राइट अ एल्गोरिदम। सो ये एक जनरल स्टेप्स थे, हमें किस तरह से एक लेटर लिखना है। उसी तरह से अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक दूसरा एल्गोरिदम बोलती हूँ कि आप एक एल्गोरिदम लिखिए टू ब्रश योर टीथ, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे गो टू द वॉशरूम, स्टेप 1। स्टेप 2 टेक योर ब्रश, आप अपना ब्रश लेंगे, टेक टूथपेस्ट एंड अप्लाई ऑन योर ब्रश, ब्रश योर टीथ, वॉश योर माउथ, वॉश योर ब्रश एंड कीप इट। यही करते हैं ना आप लोग। सो दिस इज द बेसिक स्टेप्स, दिस इज एल्गोरिदम, द बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक स्टेप्स आपको चाहिए होते हैं। अब जो नेक्स्ट बात आ जाती है वो आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एल्गोरिदम के? So the first characteristic is
correctness of algorithm, and the second one is efficiency of algorithm. So what is correctness of algorithm? That is whether the algorithm is yielding correct result or output with the given set of inputs. यानी कि इसका मतलब है कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है, जो आपको रिजल्ट जो वो मिल रहा है, वो क्या करेक्ट है कि नहीं, जो आप इनपुट उसमें दे रहे हैं. जैसे कि आपने बोला मुझे ब्रश करना है, तो ब्रश करने पे आप पेस्ट लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आपको आउटपुट रिजल्ट क्या मिल रहा है, आपके टीथ जो हैं वो ब्रश हो रहे हैं. सो इसने क्या कहा, जो भी इनपुट आप दे रहे हो, क्या आपने चेक करना है कि क्या उस इनपुट से आपको करेक्ट आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता है. So this is all about correctness of algorithm, and the second one is efficiency of algorithm. Efficiency of algorithm means how fast it is, that is how much there it takes to give final result, how simple or complex steps it uses to solve the problem, and how much resources it uses. यानी कितना आपको रिसोर्सेज, कितना टाइम, क्या क्या चीजें, कितनी सिंपल प्रॉब्लम है, ये सब चीजें कितना फास्ट आपका काम कर रहा है एल्गोरिदम, ये डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिदम. यानी वो कितना बेटर है, आपने जो एल्गोरिदम बनाया है वो कितना बेटर है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एल्गोरिदम. यूजेस क्या हैं आपके एल्गोरिदम के? सो algorithms are used in all types of programming. There are standard efficient algorithms available for variety of tasks. So मैंने आपको पहले भी बताया कि एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप्स हैं जो आप लिखते हैं किसी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पे वेराइटी, हर कोई काम कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो बिना किसी एल्गोरिथम के नहीं होता. आपको उसके लिए एक एल्गोरिथम लिखना पड़ता है कि वो काम किस तरह से होगा. So some examples of algorithms uses include, उसमें क्या क्या आता है? The first one is search engines. So algorithms are used for efficient searching over internet. Algorithm कहाँ पे, जो आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं वो भी किस तरह से सर्च होता है कि आप किस तरह से जब एक वर्ड डालोगे तो पर्टिकुलर इस तरह के ये पेजेस खुल जाएंगे. तो जो सर्च इंजन पे आप सर्च करते हो, इंटरनेट पे जो आप गूगल में जो आप सर्च करते हो, वो उसके ऊपर भी एक एल्गोरिथम लिखा जाता है. सो वेदर फोरकास्टिंग, द सेकंड वन इज in weather forecasting. There are specifically designed weather forecasting algorithms that study the satellite pictures and weather patterns. इसमें क्या होता है, इस वेदर फोरकास्टिंग में ऐसे एल्गोरिथम्स लिखे जाते हैं जो आपके सैटेलाइट की पिक्चर्स लेता है और वेदर किस तरह का हो रहा है उन सब की पिक्चर्स लेके आपको वो सेंड करता है. सो वेदर फोरकास्टिंग में भी हम एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज इन सॉर्टिंग. एल्गोरिथम्स कैन सॉर्ट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ डाटा टू ह्यूज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा. ये क्या करता है? सॉर्टिंग मीन्स अरेंज करता है, चाहे वो छोटा सा डाटा है या आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा है, ये सारे डाटा को सॉर्ट करता है. सॉर्ट मीन्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, वेदर इन अ असेंडिंग और इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. द नेक्स्ट वन इज इन pattern recognition. In fields like fingerprints matching or face recognition etc, algorithms play a very important role. यहाँ पे भी जब आपके जैसे आपके स्मार्टफोन्स हैं, यहाँ पे आप अपना फिंगर या अपने आई रेटिना या आप अपने फेस का पिक्चर जो लगाते हैं, ये भी एक एल्गोरिथम इसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट यूजेस ऑफ एल्गोरिथम्स. एल्गोरिथम्स हर जगह पे यूज हो रहे हैं टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. वेदर फोरकास्टिंग में, सॉर्टिंग में, पैटर्न रिकॉग्निशन में, सर्च इंजन्स में. पैटर्न रिकॉग्निशन में आप अपने स्मार्टफोन्स में आपने पैटर्न लगाया होता है, लॉक लगाया होता है, तो उसमें भी एल्गोरिथम्स लगे होते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग एन एल्गोरिथम. किस तरह से आप अपने एल्गोरिथम को बनाते हैं? द डेवलपमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम इज अ की स्टेप इन इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम्स. वंस we have an algorithm, we can translate it into a computer program in a programming language. So algorithm development process consists of 5 major steps. These are the steps that are required during the development
development of the algorithm. The first step is obtain a description of the problem. तो इसने क्या कहा, एल्गोरिदम अगर आपने जब लिखा हुआ होता है तो उस एल्गोरिदम को सिंपल लैंग्वेज को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है. सो दिस इज द बेटर वे टू राइट एन एल्गोरिदम बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम ऑफ दैट particular problem. So the first step is obtain a description of the problem. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो उसका पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एक इन अ टेस्ट रिजल्ट सिस्टम मोस्टली इट इज अज्यूम्ड दैट मैक्सिमम मार्क्स आर 100. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई assumptions एंड बी श्योर अबाउट थिंग्स. तो आपको यहाँ पे जैसे मैं इसने एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी है उस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर आप एक क्लास में टेस्ट लेते हैं तो उस टेस्ट में हम लोग एज्यूम करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 100 होती है, यानी 100 में से आपको मार्क्स मिल रहे हैं. अगर ऐसा नहीं है, आपके मार्क्स कम हैं या ज्यादा हैं, जो भी हैं, तो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी में लोगों के दिमाग में यही कंसेप्शन होता है, एजम्पशन होता है कि उसे कितने मार्क्स 100 में से ही मार्क्स मिलेंगे. सो जो भी मार्क्स आप ले रहे हैं उसको पहले ही क्लैरिफाई कर दो कि आपकी डिस्क्रिप्शन जो है, आपकी प्रॉब्लम जो है कि मेरे मार्क्स 50 में से हैं या 150 में से, जो भी है आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम की. The second step is analyze the problem. आपने उसके बाद अपने प्रॉब्लम को पूरा एनालाइज करना है, पूरा पढ़ना है कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं. जैसे मैंने आपका रिजल्ट का जैसे अभी टेस्ट का बात की है, तो उसमें आपने ये भी करना है, एनालाइज करना है कि इफ एनी डाटा इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर डाटा, कि आप जो इसमें डाटा ले रही हो वो किसी दूसरी चीज पर डिपेंड तो नहीं है. जैसे कि अगर मैंने फाइनल एग्जाम लेना है, आपका फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपके मिड टर्म पे डिपेंड करता है. तो यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक आपका हाफ ईयरली के एग्जाम की मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम्स के साथ अटैच नहीं होते. सो आपका फाइनल एग्जाम जो है, जो फाइनल एग्जाम के मार्क्स हैं वो डिपेंड हैं ऑन द हाफ ईयरली मार्क्स, हाफ ईयरली एग्जाम मार्क्स. सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका डाटा जो है वो किस चीज पे, कहाँ डाटा आपका डिपेंड कर रहा है. द नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग अ हाई लेवल एल्गोरिदम. आपने उसके बाद जब आपको अपनी प्रॉब्लम का पता चल गया, आपने उसके बारे में पूरा आपको एनालाइज हो गया है, पता चल गया है कि कौन सा डाटा है, क्या क्या चीजें आपने लेनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, नाउ यू हैव टू डेवलप अ एल्गोरिदम. उसके बाद आप स्टेप्स लिखेंगे कि किस तरह से आपका एल्गोरिदम इंक्लूड उसमें होगा. देन उसके बाद जो आपका स्टेप है वो स्टेप है रिफाइन द एल्गोरिदम बाय एडिंग मोर डिटेल्स. अगर आपने एक बार एल्गोरिदम लिख दिया, अब आप चाहते हैं कि उसमें मैं कुछ और चीजें ऐड करना चाहती हूँ, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स मेरे को इसमें रह गए हैं वो मुझे डालने हैं, तो वो माइनर स्टेप्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं. जैसे कि आपने बोला कि आपके 100 मार्क्स हैं या 50 मार्क्स हैं, जितने भी मार्क्स हैं आपके एग्जाम के में, तो आपको वो चीज चेक करनी पड़ेगी कि क्या किसी ने 100 मार्क्स तो नहीं कर दिए, किसी ने 150 मार्क्स तो नहीं कर दिए. अगर 50 हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि हर किसी के मार्क्स आपने 50 में से ही दिए हैं या नहीं दिए हैं. तो यहाँ पे आप उसको रिफाइन करेंगे. उसके बाद करेंगे रिव्यू एंड टेस्ट द एल्गोरिदम. जब आपने सारी चीजें लिख ली हैं, आपका एल्गोरिदम बन गया है, अगर उसमें कुछ गलतियां हैं वो आपने उसमें कुछ नई चीजें डिटेल ऐड कर ली हैं, और लास्ट में आपका आता है रिव्यू एंड टेस्ट द एल्गोरिदम. उसके बाद आप चेक करेंगे कि जो आपने एल्गोरिदम बनाया है उसे करेक्ट इनपुट देने पे, यानी जो आप इनपुट उसको दे रहे हो उसको देने पे आपको करेक्ट आउटपुट मिल रहा है या नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट algorithms. I hope you understand it. So in the next class we'll study the next topic, that is flowcharts. Thank you.